बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूजफुल साबित होगा। चैप्टर 2 दैट इज़ अबाउट सेंस ऑर्गन्स। इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम चैप्टर 2 एंड ऑल यू नो दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। आई specified for sight, nose specified for smell, hearing is sensed by our ears, taste is detected by our tongue, and the touch, and the corresponding organ is skin. Among all these 5 organs, we will discuss one by one all the organs. We will discuss their structure as well as the function. And today our selected organ is nose. The SLO that we have to achieve through this lecture is explain the structure and functions of nose. Before going to start the study of nose, it's better to understand the sense organs. We'll find help from our textbook at page 20 under heading 2.1 sense organs. First of all, we see what are sense organs and then we'll jump to our major topic that's about the structure and functions of nose under the topic 2.2. So what are sense organs? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि we have 5 senses. Humans have 5 senses and there are 5 sense organs, each specified for one sense. You all know about the sense organs and the corresponding senses. But what sense organs are actually? Sense organs are the specialized organs that have the ability to sense the change in the environment. They actually develop a connection between external environment as well as internal environment, or you can say they communicate between internal as well as internal environment. Each sense organs, whether it is ear, mouth or tongue, skin, eye, nose, all of these 5 sense organs have specialized cells which are called receptors. These receptors have the ability to sense the change, any type of change taking place in their environment, and then transport this change to brain to analyze and process it. Now, what are receptors? Receptors are the specialized cells, specially made up of proteins that can detect the change in the environment. It may be a muscle, it may be cell or organ, and by which the change or the stimulus, received stimulus, is transferred to brain is called sensory neurons. All the receptors detect the change and transfer their information, their perception, their change, their received change to the brain for analysis through sensory neurons. Sensory neurons are also a specialized type of cells present in our nervous system. In previous chapter 1, you have observed the sensory neurons. You have observed, here is another picture. Sensory neurons, as you can see, are attached to receptor cell. From these receptor cell perceive or detect change, any type of change, not any type of change but their corresponding change. Each receptor is specified for a particular type of change. There are light receptors that can detect only change in light. There are heat receptors that can change in the heat of the environment. There are pain receptors that can detect the pain only. So किसी भी किस्म का चेंज होगा वो रिसेप्टर सेल रिसीव करेंगे और ये रिसेप्टर सेल इस सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के इस ब्रांच के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे ब्रेन को। ब्रेन इस मैसेज को एनालाइज करेगा और corresponding response generate करेगा। These are the sensory neurons.
in grade 8 you will study in detail the structure and functions of the sensory neurons and other type of neurons. So all these 5 organs possess these sensory neurons as well as receptors to detect the change taking place in the environment. These are also a means of communication between external as well as internal environment. अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि नोज के स्ट्रक्चर और फंक्शन की तरफ है. नोज आप जानते हैं, एक कॉमन इंफॉर्मेशन है कि नोज आर स्पेसिफाइड टू स्मेल, लेकिन नोज के इसके ज़्यादा भी फंक्शन हैं, वो हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले तो हम नोज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोज देखेंगे और फिर हम उसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे. तो नोज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इस पिक्चर के थ्रू स्टडी करते हैं. ये नोज आपको एक्सटर्नली दिखाई गई है. इस नोज का ये जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं, ये नोज का साइड व्यू है. और ये फ्रंट व्यू है. ये जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं, ये ब्लू पोर्शन इट इज कॉल्ड कार्टिलेज. अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक सॉफ्ट टाइप ऑफ बोन है विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. कार्टिलेज का फंक्शन क्या है कि कार्टिलेज, ये 2 तरह के कार्टिलेज सेक्शंस हैं. इट इज़ अपर वन एंड इट इज़ लोअर वन. अपर वन कार्टिलेज का काम ये है कि ये सपोर्ट करती है नोज को, नोज के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है. और लोअर वन सपोर्ट तो करती है, लेकिन सपोर्ट करने के साथ साथ ये शेप अप भी करती है नोज को. तो हमारी नोज की शेप बेसिकली लोअर कार्टिलेज पे डिपेंड करती है. इस कार्टिलेज सेक्शन के ऊपर आपको एक येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है. ये येलो पोर्शन एक्चुअली बोनी स्ट्रक्चर है नोज का. ये नोज का बोनी स्ट्रक्चर है और बोन का काम क्या है कि ये नोज को हार्ड सपोर्ट देती है. सॉलिड सपोर्ट नोज को बोन की तरफ से मिलती है. अब ये जो स्किन आप देख रहे हैं, ये स्किन नोज के दोनों तरफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है. और इस स्किन का काम भी नोज की शेप अप करना है, नोज को शेप अप करना है. आपको नोज की बिलो अंडर साइड पे 2 तरह की ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं. ये ओपनिंग्स और इस तरफ भी ये ओपनिंग्स. ये ओपनिंग्स एक्चुअली इनलेट हैं एयर के लिए, इनहेल्ड एयर के लिए, और इन्हें नोस्ट्रिल्स कहा जाता है. इन दोनों साइड की ओपनिंग्स को, 2 ओपनिंग्स हैं, नोस्ट्रिल्स कहा जाता है. और ये नोस्ट्रिल्स आर एक्चुअली इनलेट फॉर एयर, इनलेट एंड एज वेल एज आउटलेट. अब ये दोनों नोस्ट्रिल्स जिस स्ट्रक्चर के थ्रू सेपरेट की जाती हैं, ये वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ये दोनों नोस्ट्रिल्स सेपरेट की जाती हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. इसे सेप्टम कहते हैं. सेप्टम, और ये ऊपर तक चला जाता है. जहाँ तक ये बोन जाएगी, सेप्टम भी वहाँ तक कंटिन्यू रहेगा. सेप्टम भी एक्चुअली कार्टिलेज से मिली हुई एक वॉल है जो कि दोनों नेजल कैविटीज को अलग अलग करता है. ये तो था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ नोज. अब हम देखते हैं कि इंटरनली नोज में क्या प्रेजेंट है और इसका स्ट्रक्चर इंटरनली कैसा होता है. सो हेयर यू कैन सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोज. नोज ज़्यादातर हॉलो कैविटीज से मिलकर बना हुआ है. ये तमाम 4 तरह के ये कैविटीज़ हैं. आपको इनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कैविटीज़ हैं. एक ये ग्रीन में आप देख रहे हैं फ्रंटल एथमॉइड साइनस नेजल कैविटी. ये एक्चुअली नेजल कैविटी है जिसके अंदर म्यूकस और नोज हेयर प्रेजेंट होते हैं. इस नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस और नोज हेयर प्रेजेंट हैं जो कि एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं.
वो इस नेजल कैविटी में प्रेजेंट है। इसके अलावा मैक्सिलरी साइनस है, और ये चारों की चारों कैविटीज़ कहाँ प्रेजेंट हैं? स्कल के बैक की तरफ, राइट अबव द ओरल कैविटी। ये आपकी ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के ऊपर स्कल के पिछली तरफ और विद इन द चीक बोन्स, ये आपके पास मैक्सिलरी साइनस जहाँ पे आए, यहाँ पे आपकी चीक बोन्स होंगी। चीक बोन्स के साथ ओरल कैविटी के ऊपर और स्कल के पिछली तरफ बिटवीन द आईज, ये दोनों आईज हैं, आप देख सकते हैं, इनके दरमियान में नेजल कैविटीज प्रेजेंट हैं। अब इन नेजल कैविटीज का काम क्या है कि ये तमाम की तमाम नेजल कैविटीज ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। ना सिर्फ ब्रीदिंग में बल्कि स्मेल करने में भी, टेस्ट में भी और इम्यून सिस्टम में भी ये किसी ना किसी तरह से हेल्प आउट करती हैं। नोज का इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली हॉलो कैविटी से मिलकर बना हुआ है। हर कैविटी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ओवरऑल इनका फंक्शन ब्रीदिंग में, स्मेलिंग में, टेस्टिंग में और इम्यून सिस्टम में है। आपको पता होना चाहिए कि किस नेजल कैविटी में म्यूकस और नोज हेयर प्रेजेंट है। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम आते हैं नोज़ के फंक्शंस की तरफ। नोज़ का एक फंक्शन तो स्मेल करना है, लेकिन इसके अलावा भी नोज़ के बहुत से फंक्शंस हैं जो कि हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। नोज़ आइडेंटिफाइज ऑडर। नोज़ हैज़ द एबिलिटी टू सेंस डिफरेंट स्मेल्स। अब ये कैसे होता है? नोज़ की अगर अपर पार्ट में देखें तो आपको ये कुछ एक स्ट्रक्चर येलो कलर का दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली कंटेन्स नर्व्स, रिसेप्टर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये रिसेप्टर सेल्स एक्चुअली इनलेट एयर में जो भी इनहेल्ड एयर होगी वो कहीं से भी आ रही है। इनहेल्ड एयर में जो पार्टिकल्स होंगे डिफरेंट स्मेल्स के, एरोमा हो या बैड स्मेल हो, उन पार्टिकल्स को सेंस करेंगे और उनको ब्रेन तक ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से नोज इन सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू, और जिन्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहा जाता है, के थ्रू स्मेल को सेंस कर सकता है। अब यहाँ पे दो तरह से एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि समटाइम्स हम किसी फूड को देखते नहीं हैं लेकिन फिर भी उसके टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? या हम फूड को देख तो रहे होते हैं, उसे टेस्ट नहीं किया होता, लेकिन उसे देखते ही हम उसकी स्मेल से उसका टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या सिर्फ स्मेल करके ही फूड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ये जो बिटवीन माउथ, ये माउथ रीजन है, बिटवीन माउथ एंड नोज देयर इज अ कनेक्शन। माउथ एंड नोज आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड। सो वो इनलेट एयर जिसमें एरोमा या ऑडर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेंसरी रिसेप्टर्स को टच करने के बाद माउथ में से आए, माउथ में अगर पास ऑन हो, या पहले वो माउथ में से पास ऑन हो, जैसे हम मुंह के जरिए सांस लेते हैं, तो और फिर नोज के थ्रू जाएं, तो इस तरह से हम बिना देखे फूड को सिर्फ स्मेल करके उसका टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The next function of nose is related to nasal cavities and the nose hair present inside it. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो नेजल कैविटीज हैं। इस नेजल कैविटी में एक लेयर तो आप जो वेरी ऑब्वियस है वो है हेयर या सीलिया, और दूसरी लेयर है जो इसकी बिल्कुल लाइनिंग, इसके नेजल कैविटी के साथ साथ लाइनिंग होगी, वो म्यूकस की लेयर होगी। म्यूकस एक स्टिकी मैटर है। अब क्या होगा, इसका फंक्शन क्या है कि जैसे ही हवा नोज में, नॉस्ट्रिल्स में एंटर होती है तो इन नोज हेयर और म्यूकस के साथ स्ट्राइक करती है। ये नोज हेयर और म्यूकस एक्चुअली एक बैरियर का काम करते हैं। उस इनलेट एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जो भी बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट होंगे, वो इस म्यूकस के साथ स्टिक करके वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और ट्रेकिया में या फर्दर किसी भी अंदर बॉडी में नहीं जा सकेंगे। म्यूकस स्टिक बैक्टीरिया एंड डस्ट पार्टिकल्स to itself.
इस तरह से नोज में जाने वाली हेयर फिल्टर हो सकती है। और हेयर क्या काम करते हैं, ये भी बैरियर का काम करते हैं, बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स को आगे जाने से रोकते हैं। आप जानते हैं किसी जगह पे जितने ज़्यादा बैरियर्स होंगे उस जगह पे मूव करना इतना ही डिफिकल्ट होगा। सो नोज हेयर एक बैरियर का काम करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेन आगे जाने वाली हेयर का इंक्रीज करते हैं ताकि वो हेयर में मौजूद पार्टिकल्स म्यूकस के साथ स्टिक होके आगे ना जा सकें। सो हम कह सकते हैं कि नोज हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस नोज के थ्रू या इनहेल्ड एयर के थ्रू दाखिल होते हैं, और अगर इन बैक्टीरिया को यहीं पे रोक दिया जाए तो हमारी बॉडी इन हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस से महफूज रह सकती है। सो द नोज का दूसरा फंक्शन है कि नोज एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, म्यूकस का और नोज हेयर का या सीलिया का। नोज का थर्ड फंक्शन भी नोज हेयर से रिलेटेड और म्यूकस से रिलेटेड है कि बाहर से जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से डिफरेंट है, और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि बाहर से आने वाली किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर उसके इंटरनल टेम्परेचर के साथ मैच किया जाए, यानी आने वाली हवा का भी वही टेम्परेचर हो जो बाहर मौजूद हवा का है। सो अब जब ये हवा नोज हेयर के साथ स्ट्राइक करती है तो नोज हेयर उनको वार्म अप कर देते हैं। वार्म अप द इनहेल्ड एयर so that its temperature can match to the temperature of the body। और इस तरह ये जो म्यूकस है वो नोज को ड्राइंग से भी रोकती है, खुश्क नहीं होने देती। अगर म्यूकस ड्राई हो जाएगा तो बैक्टीरिया और वायरसेस को ठीक तरह से चेक नहीं किया जा सकेगा। सो नोज का थर्ड फंक्शन है कि नोज वार्म द इनहेल्ड एयर, और नोज इनहेल्ड एयर को वार्म करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आने वाली मटेरियल का टेम्परेचर मैच अप हो सके। नोज also help us in hearing. How? Let's see. This is a eustachian tube arising from the ear. It actually connects the middle ear to the nasopharynx. It is also a type of cavity. And this nasopharynx is present at the upper throat and the back of nasal cavity. These parts actually controls the pressure within the eustachian tube actually controls the pressure within the middle ear. And hence making its pressure equal to the air pressure outside the body. There is obviously different amount of pressure inside and outside of the body, but for proper hearing, proper functioning, proper balance of the body, it is compulsory to equalize the balance between internal and as well as the external environment. It is done through the eustachian tube. अब ज़्यादातर वक्त क्या होता है कि ये जो eustachian tube है ये बंद रहती है, इसमें से एयर पास आउट नहीं हो सकती, लेकिन ये उस वक्त ओपन होती है जब यॉर्निंग की जाए, स्वालिंग के थ्रू और कुछ च्यू किया जाए, तो उस वक्त ये यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होती है, इसका पाथ ओपन होता है और एयर से नोज़ के थ्रू इस रीजन तक चली जाती है। इसकी वजह यह है कि हमें अचानक से जब हम यॉर्निंग करते हैं तो हमें अपना कान बंद होते महसूस होते हैं। इसकी वजह क्या है कि थ्रू यॉर्निंग और थ्रू स्वेलिंग और थ्रू च्यूइंग हम एक्सटर्नल प्रेशर एयर का इंटरनल प्रेशर से डिफरेंट हो जाता है। लेकिन समटाइम्स यॉर्निंग और स्वेलिंग पर्पसफुली की जाती हैं ताकि यहाँ इसको ओपन किया जाए और एयर को अलाउ किया जाए अंदर जाने के लिए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि बॉडी का बैलेंस एयर प्रेशर चेंज ना हो सके और बॉडी, क्योंकि अगर प्रेशर बैलेंस होगा तो ही और एयर अच्छे से ट्रांसफ़र होगी तो ही बॉडी सक्सेसफुली काम कर सकेगी और हमें हेयरिंग प्रॉपर सुनाई देगी। इस रीजन में एयर का प्रेशर बैलेंस होने की वजह से ही हम प्रॉपरली हेयर आउट कर सकेंगे। अगर यहाँ इस रीजन में एयर का प्रेशर प्रॉपर ना हो तो हमें मुकम्मल तौर पे या सही तरीके से सुनाई भी ना दे।
इसे यहाँ इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियर है कि यहाँ से देखें यूस्टेशियन ट्यूब कान से निकल के, ये ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, कान से निकल के ये नोज़ की नेज़ोफेरिंक्स कैविटी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से जैसे ही एयर आएगी ये इसमें मौजूद लिक्विड को शेक करेगी या उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। एयर के थ्रू यहाँ का प्रेशर, इसमें मौजूद लिक्विड का प्रेशर बैलेंस किया जाता है ताकि प्रॉपर हेयरिंग हो सके। सो ये तो थे नोज़ के फंक्शंस। अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क के लिए आप अपना टेस्ट एक्सरसाइज देखिए। ये टेस्ट एक्सरसाइज आपकी बुक में पेज 24 पे प्रेजेंट है और उसका बाकी का पार्ट पेज 25 पे आपको मिलेगा। यहाँ पे हम अपने पार्ट ए में देखते हैं जो कि MCQs हैं। फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको हर स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कैविटीज इन चीक बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। चीक बोन्स की कैविटीज रिस्पॉन्सिबल है स्मेलिंग, ब्रीदिंग, टेस्टिंग, ऑल ऑफ देम। आपने अभी चीक बोन्स नोज का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है और आपको मालूम है कि चीक बोन्स कहाँ प्रेजेंट है और उसके साथ किस तरह की कैविटीज अटैच हैं, तो उनका फंक्शन भी आप जानते हैं। सो आप उनको उसका राइट आंसर आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए। सेप्टम इज कंपोज्ड ऑफ। सेप्टम वो रीजन, सेप्टम वो स्ट्रक्चर है जो सेपरेट आउट 2 नोस्ट्रिल्स, सेपरेट द 2 नोस्ट्रिल्स। अब ये किससे मिलकर बनी है? क्या ये बोन से मिलकर बनी है? क्या ये सिर्फ टिश्यूज से मिलकर बनी है? क्या ये कार्टिलेज है? क्या ये मसल है? क्या चीज़ है? ये आपने फाइंड आउट करना है। ये तो थे हमारे 2 क्वेश्चन जो कि नोज से रिलेटेड थे। अब आते हैं अपने पार्ट बी की तरफ जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। डिफाइन सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ये क्या होते हैं और ये बाकी ऑर्गन से क्यों मुख्तलिफ हैं। नंबर 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आर देयर एनी कैविटीज प्रेजेंट इनसाइड द नोज? इफ यस मेंशन देयर रोल। नोज कैविटी का, नेजल कैविटीज का रोल आप देख भी चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, सो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। टेस्ट एक्सरसाइज से हमारे रेलिवेंट क्वेश्चन सिर्फ यही थे। अब आते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक के पेज 8 पे प्रेजेंट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी MCQ से रिलेटेड है। आपको स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस दी गई हैं। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप चारों ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करें, में से राइट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ नोज कैविटीज़? नेजल कैविटीज़ आपने देखी हैं तो आप उनकी लोकेशन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑन द बैक ऑफ द स्कल, विद इन द चीक बोन्स, ऑल ऑफ दीज, राइट अबव द ओरल कैविटी। जो भी राइट आंसर है आप उसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट पेज 29 पे देखिए। इसका पार्ट बी में से क्वेश्चन 1 आप सॉल्व करेंगे जो कि आपने बताना है कि रिसेप्टर्स क्या हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है। दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 2 देखिए पार्ट बी का। हाउ डज नोज हेल्प इन हियरिंग? इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ा है कि नोज का एक कनेक्शन यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू एयर के साथ होता है और नोज में आने वाली एयर यूस्टेशियन ट्यूब में प्रेजेंट लिक्विड को बैलेंस करती है ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर का प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रेशर के साथ इक्वलाइज हो सके। सो इस तरीके से प्रेशर इक्वलाइज करने की वजह से नोज हेयरिंग में हेल्प आउट करता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज अबाउट हाईलाइट द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सेंस ऑर्गन्स। आपने ब्रीफली बताना है कि सेंस ऑर्गन्स क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, रिसेप्टर्स क्या हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या हैं, इन सब का फंक्शन क्या है। फिर आप एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोज का जो हमारा आज का मेन टॉपिक था कि नोज का स्ट्रक्चर और फंक्शन आप इन डिटेल बताएंगे। इसमें आप डायग्राम्स भी बनाएंगे और बुलेट पॉइंट्स में नोज का फंक्शन राइट अप करेंगे। अब आप आइए अपने समर पैक की तरफ। समर पैक का चैप्टर 2 खोलिए। चैप्टर 2 में SLO1 और SLO2A है। इट इज डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सेंस ऑर्गन्स और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोज। ये हमारा आज का लेक्चर टॉपिक था। इसको सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि वेयर हैव दीज SLOs बीन एड्रेस्ड इन द बुक।
आपने अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है और फाइंड करना है कि ये दोनों एसएलओस कहाँ पे बुक में बयान किए गए हैं। आपने अपनी बुक का नाम लिखना है और यहाँ पे अपने पेज नंबर लिखना है और हेडिंग भी लिखनी है। हेडिंग लिख लें या टॉपिक नंबर लिख लें जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये दोनों एसएलओस प्रेजेंट हैं। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिए कि हम ये एसएलओस क्यों स्टडी करते हैं या एसएलओ को स्टडी करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसे पढ़ने के बाद आप एक्टिविटी 2.1 सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हाफ आपको इस पेज पे मिलेगा और नेक्स्ट हाफ आपको इसके बिल्कुल एडजेसेंट पेज पे मिलेगा। आपको एक स्टोरी दी गई है, आपने स्टोरी को गौर से पढ़ना है और गौर से पढ़ने के बाद इस स्टोरी के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करना है। पहला सवाल है कि हाउ मेनी सेंसेस वर यूज्ड इन द स्टोरी। आप स्टोरी पढ़ेंगे गौर से और फाइंड आउट करेंगे कि किन किन सेंसेस को इस स्टोरी में यूज़ किया गया, उन सबको एनलिस्ट कर लेंगे। फिर राइट द नेम्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन फ्रंट ऑफ देयर बेस्ट फंक्शनल डिस्क्रिप्शन एक्सेप्टेड फ्रॉम द अबव स्टोरी। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है, इस डिस्क्रिप्शन को भी गौर से पढ़ना है और देखना है कि ह्यूज के उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के साथ कौन सा सेंस ऑर्गन रिलेटेड है। जैसे ह्यूज वेल है, हमें कैसे पता चलेगा कि वेल बहुत ह्यूज है, कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली आई यूज़ करेंगे, तो आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम लिख देंगे। इसी तरह आप बाकी डिस्क्रिप्शन के सेंस ऑर्गन्स भी यहाँ पे लिखेंगे। अब आप खोलिए अपने समर पैक का एमसीक्यू सेक्शन। एमसीक्यू सेक्शन में आप क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। हाउ वुड यू नो दैट फीलिंग ऑफ पेन बिटन बाय अ येलो wasp cause allergic reaction? By using visual organ, by using taste organ, by using sense organ और by using touch organ। इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है उसको लिखने के बाद आप उसकी रीज़न भी बताएंगे कि आपका चोजन आंसर क्यों सही है और बाकी आंसर क्यों सही नहीं है। एमसीक्यू नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकेशन ऑफ नेजल कैविटीज। इनमें से नेजल कैविटी की कौन सी लोकेशन एक्यूरेट नहीं है, यानी इनमें से किस जगह पे नेजल कैविटीज प्रेजेंट नहीं होती। अबव द चेस्ट कैविटी, विद इन द चीक बोन्स, बैक ऑफ द स्कल, बिटवीन आईज एंड आईब्रोज। अगर आपने टॉपिक को गौर से पढ़ा और समझा है तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी रीज़न भी बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे आज के लेसन से रेलिवेंट नहीं है, सो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे आज के लिए। अब आते हैं अपने एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 1 है डिफाइन रिसेप्टर्स, व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं, उनका काम क्या है, आप पढ़ चुके हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है हाउ वुड वी प्रोटेक्ट अवर नोज फ्रॉम बीइंग ड्राइड आउट एंड व्हाट विल हैपन इफ इट ड्राइड आउट। नोज को मॉइस्ट रखने के लिए म्यूकस एक मटेरियल नोज की इंटरनल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। जो अब इसका आंसर फाइंड करने के लिए आप ये सोचिए कि म्यूकस क्या काम करता है और अगर म्यूकस ना हो तो वो काम कैसे होगा। यकीनन वो काम नहीं होगा जो कि म्यूकस का मेजर फंक्शन है। सो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग सेप्टम एंड नेजल कैविटी। सेप्टम क्या था, सेप्टम वो टिश्यू था, सेप्टम वो स्ट्रक्चर था जो दोनों नोस्ट्रल्स को सेपरेट करता है और नेजल कैविटीज नोज में पाई जाने वाली हॉलो स्ट्रक्चर्स थे। आप इन दोनों का फंक्शंस बयान करेंगे। नेक्स्ट है हाउ डज नोज एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट सिकनेस। इसकी रीज़न भी आपको पता है कि इसमें 2 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर या सीलिया और म्यूकस। इन दोनों की मदद से नोज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है, लेकिन कैसे ये आप खुद लिखेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन है हाउ डज नोज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेयरिंग। नोज का हेयरिंग के साथ क्या ताल्लुक है या नोज हेयरिंग में कैसे हेल्प करती है। इसका वही है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एयर एंड नोज थ्रू रजिस्ट्रेशन ट्यूब, और इसका मैकेनिज्म भी आप पढ़ चुके हैं, सो आप इसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ हमने अपने एसएलओ का फर्स्ट पार्ट यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नोज कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।